Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Phylum Chordata, Scaliodan Theory and MCQ Part Second. So skin is secretion. It protect the internal organs against the mechanism injuries. Secretion of slimy mucus. Mucus body surface is slippery and difficult to catch by the predator. Minimize friction in locomotion, resist entry of the microorganism into the body. It coloration camouflage as the fish filed as a fish blend slippery surface water when seen from the below with dark and bottom above when the seen from the above predator. Skin predator skin or receptor help in the reaching surroundings. Exoskeleton is made up of the pellicide skull. This is called dentine या फिर pellicide skull embedded in skin. Structure of pellicide skull is two part. Pellicide skull two part. Basal removed plate and basal removed plate and second is plate terdine spine. Uh, dentine forming cell called odontoblast. Canaculi containing a protoplasmic process of odontoblast. Enamel-like process called vitrodentine. Hard, shiny enamel-like process called vitrodentine. Development pellicoid scale mesodermal and original forming from the epidermis, forming by dermal. Epidermal and forming by dermal. Mylipian to germinatum stratum. Epidermis formed by the germinatum stratum और द मालिपिगियन लेयर इज कॉल्ड अमीबोब्लास्ट. क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एपिडर्मल सेल ऑफ जर्मिनेटम स्ट्रेटम जर्मिनेटम फॉर्मेड बाय अमीबोब्लास्ट सो कॉल्ड इनेमल ऑर्गन. सीमेंट बेसल प्लेट और सेकेंड और ट्रेडेंट. होमोलॉजी ऑफ प्लेकॉइड स्केल. होमोलॉजी प्लेकॉइड स्केल इज वर्टिब्रेट टीथ. Placoid scale become servus teeth, which is the spine directed backward and used for the holding and tearing prey. As the mouth leaning turn skin teeth developed in it also derivate and thus homologous placoid scale. According to a light view, placoid scale is a composite texture having dual rows of origin. जैसे कि यहाँ पर बता रहा है जो प्लेकॉइड स्केल डुअल फंक्शन करता है. सोर्स ऑफ ओरिजिन. It is basal plate cement and dentine are the derived from the mesoderm mesodermal. जो यहाँ पर जो दो पार्ट की बनी होती है. बेसल प्लेट जो है वो डेरिवेट होती है मीजोडर्म से. बेसल प्लेट जो है प्लेकॉइड स्केल की वो मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, जबकि विट्रो जो है विट्रॉइन वो एक्टोडर्मल होती है. तो टू लेयर का बनी होती है यहाँ पर प्लेट स्केल्स होती हैं. वो विट्रॉइन जो है एक्टोडर्मल होती है, मीजोडर्मल होती है यहाँ पर बेसल प्लेट. जो बेसल प्लेट है वो मीजोडर्मल होती है
बेसल प्लेट मेसोडर्मल होती है, जबकि विट्रोइन है वो एक्टोडर्मल होती है ओरिजिनल। जो टूथ डेरिवेट होते हैं, टूथ इनेमल कवरिंग, टूथ हैज इनेमल कवरिंग फ्रॉम एक्टोडर्म बट प्रेजेंस ऑफ डेंटाइन प्लेकार्ड स्केल। जो डेरिवेट होते हैं इनेमल वो होते हैं एक्टोडर्मल बट प्रेजेंस इन डेंटाइन बट प्लेकार्ड स्केल। एक्टोडर्मल होते हैं यहाँ पर इनेमल कमरी गए वो एक्टोडर्मल होती है, मगर इनेमल जो है वो मीजोडर्मल कवरिंग और ओरिजिन उनकी मीजोडर्मल होती है, जबकि कवरिंग उनकी होती है वो एक्टोडर्मल होती है प्लेकार्ड स्केल की। विट्राइन है वो यहाँ पर क्या बताया था, एक्टोडर्मल था। विट्राइन जो एक्टोडर्मल था और जो प्लेट स्केल हैं वो मीजोडर्मल थी। द प्लेकार्ड स्केल मेजोडर्मल लाइक द स्केल ऑफ बोनी फिश। जो प्लेकार्ड स्केल हैं वो मेजोडर्मल लाइक होती हैं, जैसे कि बोनी फिश में होती हैं, ओस्टियोथाई जिसे कहते हैं क्लास। ये एक्सोस्केलेटन बाद में और चैप्टर में देखें। मोशन मायोटोम्स एंड लोकोमोशन पैराइटल मसल्स। पैराइटल मसल बॉडी वॉल beneath the skin forming the bulk musculature in skinned dogfish were the first seen in arranged series of yin-yang bands or segment called the myotomes or myomers. They are separate one another tough connective tissue partition or septa called the myocotoma. In the surface view, successive myotomes appear like a hollow cones fitting into the another. However, in a transverse section, they appear as the concentric cycle placed one below other dorsoventrally. Each myotomes contain a number of parallel strip muscle fibers which run from the myocotoma to next. The myocotoma in turn are inserted internally on the vertebral column and externally on the skin. When the myotomes contact the pull the myocotoma with cause the blending of the backbone and rest body. However, the head region muscles do not show any sign of the segmentation, but they are specialized for the movement of pharynx, jaw, eyes. In the trunk region, muscles are the greatly thickened on the dorsal side of the vertebral column, but its tail region muscles are the equally developed around the vertebral column. The swimming movement of the fishes are quite complicated and cannot be discussed in the detail here. A web of metacoronal contraction pass over the myotomes from the front, in front, backward, internally on the right and left side. This contraction is called the metacoronal contraction. It has been estimated that about 54 waves of the contraction are produced very minute during the steady swimming, but the control these contractions are not fully known. But transaction spinal cord behind the medulla oblongata is capable producing swimming movement for several days. मूवमेंट के बारे में इसमें जानकारी नहीं है, मगर यहाँ पर मैंगुला ओब्लेटा है वो कैपेबल होता है स्विमिंग मूवमेंट उत्पन्न करने के लिए कई दिन तक। दिस सजेशन दैट रिथमिक कंट्रैक्शन rhythm of the contraction is largely governed by the spinal cord. This is bring about the lateral undulating of trunk and tail necessary for the swimming. The streamlined body forming minimize resistance to water during the progression. The fish is pushed forward by the strong lateral movement of extended heterocircle tail
but acts like the single propelling boat from the stern। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल है वो हिस्टोसर्कल है। हाइपोकॉर्डल लॉब इज टेल फिन फ्लेक्सिबल एंड एपिकॉर्डल लॉब इज रिजिड। पूछ सकता है हाइपोकॉर्डल और एपिल्यूल क्या है, तो टेल के फिन्स होते हैं, जो कि हाइपोकॉर्डल लॉब है वो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि यहाँ पर एपिकॉर्डल लॉब्स है वो एपिकॉर्डल रोस्ट है वो मतलब नॉन फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हाइपोकॉर्डल लॉब इज हेल्प इन द वर्टिकल लिफ्ट ऑफ द टेल। तो जो यहाँ पर हाइपोकॉर्डल लॉब्स है वो हेल्प करता है वर्टिकली उठने में फिश को। लार्ज पोर्टेटल फिन हेल्प इन द टर्निंग मिनी मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। जो पेक्टोरल फिन है वो यहाँ पर है कि वो बैलेंसिंग आर्गन कह सकते हैं इसे, कि वो मतलब स्थिरता बनाए रखती है पेक्टोरल फिन्स इन द वर्टिकल प्लेन। द मीडियन फिन्स एक्ट एज द कील प्रिवेंट द रोलिंग एंड याविंग। From the side the maintain equilibrium in the horizontal plate। द मीडियन फिन्स एक्ट एज द बैलेंसिंग। मीडियन फिन भी यहाँ पर बैलेंस की तरह कार्य करती हैं, प्रिवेंट रोलिंग लुढ़कने से बचाती है, एंड द मेंटेन इक्विलिब्रियम ये भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो है बैलेंसिंग आर्गन की तरह कार्य करती है इक्विलिब्रियम की तरह। पेल्विक फिन्स नो यूज फॉर सो लोकोमोशन। पेल्विक फिन्स जो है वो पेल्विक फिन को लोकोमोशन के लिए नहीं यूज होता है। इट इज़ हेल्प इन द रिप्रोडक्शन स्पेशली मेल्स। यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है पेल्विक फिन्स, जो कि मेल में है स्पेशली। सीलोम एंड बिसरा। द बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम डॉगफिश इज लार्ज स्पेस डिवाइडेड इनटू टू वेरी अनइक्वल कंपार्टमेंट एंड स्मॉल एंटीरियर pericardial cavity and large posterior abdominal cavity. The two separated by partition of tough connective tissue. The septum transverse. The septum is passed by pericardial peritoneal canal through the which coelomic cavity communicate with another. Pericardial cavity lies beneath the pharyngeal and surround the heart. Pericardial cavity lies beneath the pharynx and surround the heart. It is lined by the two-layered coelomic epithelium. Coelomic epithelium pericardial with a colorless pericardial fluid filled with the between and two layers. डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है और गट है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट। थ्रू द फूड पासेस ग्लैंड ओपन इट। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर है और या फिर गट इसे कहते हैं, माउथ है। बक्कल कैविटी तीत हैं, तीत जिसमें है इसमें जा नहीं पाया जाता तीत में, यानी आग्नेथा है। तो तीत जो है वो यहाँ पर होमोडेंट डिफिडेंट और पॉलीडेंट होते हैं। यहाँ पर तीत जो होते हैं यहाँ पर नॉट जिसमें जा नहीं पाया जाता है, सिंपली इम्बेडेड इन स्किल लाइक द प्लेकार्ड स्केल की तरह होते हैं तीत, जो कि होमोडेंट होते हैं, मतलब एक समान होते हैं शेप में। होमोडेंट और पॉलीडेंट होते हैं। पॉलीडेंट सेवरल टाइम्स क्योंकि कई बार आते हैं इसलिए पॉलीडेंट, सेवरल टाइम आते हैं इसलिए पॉलीडेंट कहते हैं इसे। तो होमोडेंट, पॉलीडेंट एंड लायोडेंट। लायोडेंट सेवरल रोज, इसमें कई पंक्तियों में आते हैं इसलिए लायोडेंट। टीथ सर्व टू ग्रेस्पिंग प्रे विच इज असली swallowed whole on the floor of the buccal cavity lies so called the tongue। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से लील जाता है सीधे, तीत जो है जबड़ा नहीं पाया जाता है इसलिए पूरा लील जाता है पर यानी फूड को,
इसीलिए इसे कहते हैं टोंग, तीत को टोंग कह सकते हैं। इट इज़ मेनली थिक फ्लैट नॉन मस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर एंड नॉर प्रोड्यूसिबल। तो टोंग जो है वो यहाँ पर नॉन मस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर और नॉन प्रोड्यूसिबल होती है एंड फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन सपोर्टेड इंटरनली बाय द फ्लैट फिजिकली कार्टिलेज। पेरिनेक्स की बात करें तो पेरिनेक्स बक्कल कैविटी मार्ज विथ लार्ज कैविटी। तो यहाँ पर टोंग की नॉन मस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर नॉन प्रोड्यूसिबल। पेरिनेक्स पोर्टली होती है और एक्टोडर्मल ओजिनी होती है इसकी, और इसमें ओवरऑल पेट पाए जाते हैं दोनों साइड पर एंड 5 सेपरेट वर्टिकल इंटरनल गिल पाए जाते हैं। स्पाइकल दोनों साइड पर पाए जाते हैं। 5 और सेपरेट इंटरनल गिल स्लिट पाई जाती हैं इसमें, 5 इंटरनल गिल पाउच पाए जाते हैं इसमें। इसका योजना स्पाइकल और वेस्टिजियल, और जो क्वेश्चन पूछ सकता है जो इसका वेस्टिजियल स्पाइकल किस में पाए जाते हैं स्कालियोडन में। तो स्कालियोडन है वर्टिजियल स्पाइकलस जो कि लार्वा में पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम के, उसी तरह से इसमें भी पाए जाते हैं। क्यूलेक्स की लार्वा में स्पाइकल पाए जाते हैं, इसके में पाए जाते हैं। वेस्टिजियल जो स्पाइकल पाए जाते हैं वो यहाँ पर विदाउट गिल पाए जाते हैं। फरिंजियल बाल कंटेन द नंबर ऑफ डर्मल डेंटिकल्स। इसोफेगस है, इसोफेगस नारो और थिक होती है। यहाँ पर स्टोमच जो है यू शेप्ड होता है। पाइलोरी ग्लैंड भी होती है, पाइलोरी ग्लैंड। इसोफेगस में बाल पाया जाता है यहाँ पर, ब्लाइंड सेक पाई जाती है इसोफेगस में। स्टोमच में ब्लाइंड सेक पाई जाती है, पाइलोरी की स्टोमच पाया जाता है, इसोफेगल बॉल पाया जाता है इसमें। स्टोमच में ब्लाइंड सेक पाई जाती है। कौन कौन सा बाल, स्फिंक्टर बाल पाया जाता है और इसोफेगल बाल पाया जाता है, 2 बाल पाए जाते हैं इसमें। पाइलोरी की स्टोमच पाया जाता है और ब्लाइंड सेक पाई जाती है। ब्लाइंड सेक को जो है ब्लाइंड मसल है उसे पाइलोरिक बाल कहते हैं। इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर थिक वालेड मस्कुलर चेम्बर है, उसे बर्सा एटीना कहते हैं। जो थिक वालेड मस्कुलर चेम्बर है उसे बर्सा एटेनिया कहते हैं। और इंटेस्टाइन बर्सा एटेनिया इज फॉलोड बाय द इंटेस्टाइन स्ट्राइड बाय टू अबाउट द डायमीटर कार्डियक स्टोमच इन मिडिल ऑफ द इट्स लेंथ narrow anterior part receive the bile practical pancreatic duct scalidon the inner mucus lining of the intestine mucus fold anticlockwise। तो स्कालिडन में जो इनर म्यूकस है इंटेस्टाइन फोल्ड बिकम एंटीक्लॉकवाइज एंटी स्पाइरल स्क्रॉल बॉल लॉन्गिट्यूडल स्पाइरल स्क्रॉल अबाउट 2.5 टन। दिस इज कॉल्ड द स्क्रॉल बॉब या फिर स्पाइरल बॉब। तो इसका इसके पूछ सकता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो इंटेस्टाइन फोल्ड होता है, इंटेस्टाइनल फोल्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज इंटेस्टाइन फोल्ड होता है इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्पाइरल। जो लॉन्गिट्यूडनल इंटेस्टाइन जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज लॉन्गिट्यूडनल स्पाइरल या फिर स्क्रॉल होते हैं यहाँ पर हाफ टन। टू मोड होते हैं इसमें, 2.5 टन मतलब इस तरह से 2 जो है हाफ टन होते हैं इस तरह से। इतने जो टन होते हैं इस तरह से, तो उसे स्क्रॉल बाल कहते हैं, स्क्रॉल बाल। और लॉन्गिट्यूडल होते हैं, लॉन्गिट्यूडल मतलब इस तरह से हाफ टन होते हैं, आधे आधे मतलब मुड़े हुए साइकिल या मोड़, तो उसे कहते हैं स्क्रॉल बाल। जो लॉन्गिट्यूडल इस तरह से लंबाई में, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर के लिए तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज इधर के लिए वैसे सुई तो इधर के लिए चलती है सीधे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत इधर के लिए ऐसे इस तरह से।
तो इसे एंटी क्लॉकवाइज उसे कहते हैं स्क्रॉल बाल या फिर स्पाइरल बाल, जो कि हो सकता है ये क्या है, तो इंटेस्टाइनल फोल्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल एंटी क्लॉकवाइज और लॉन्ग एंटी क्लॉक अपनी भाषा में समझे एंटी क्लॉकवाइज हाफ टू टर्न ऑफ इंटेस्टाइन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ हाफ टर्न longitudinal fold of intestine is called scroll valve या spiral valve. It is transverse section like the wash whispering service the delay. तो इसका फंक्शन पूछ सकता है स्क्रॉल वाल्व का फंक्शन, स्पाइरल वाल्व या स्क्रॉल का फंक्शन है फूड को यहाँ पर डिले से आगे, मतलब इसे डिले से मतलब देर से इसे आगे प्रोसीड करे या भेजे, delay the passage of food and offers increase the surface obsession, जैसे कि एर्थवर्म का टिफ्लोसोल लाइक द टिफ्लोसोल ऑफ एर्थवर्म के टिफ्लोसोल है उस तरह से ये भी यहाँ पर इंटेस्टाइनल फोल्ड होता है, इंक्रीज करता है एरिया सरफेस ऑब्जर्व एरिया बढ़ाता है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन, ये इनका मेन फंक्शन है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इंक्रीज ऑब्जर्वेशन एरिया फॉर द स्क्रीन, इसका मेन फंक्शन इंक्रीज सरफेस फॉर द ऑब्जर्वेशन, इसका स्क्रॉल वाल्व या फिर स्पाइरल वाल्व का। इन द सम अदर जनरा डॉगफिश स्काइलियोरिंथस एंड स्क्वालिड द स्पाइरल वाल्व वेरी वेल डेवलप्ड मेड ऑफ द 10 से 15 टन। तो अलग स्पीसीज जो हैं जो उनमें अलग अलग 10 से 15 टन होते हैं। अरेंज द मैनर स्पाइरल इन द टॉर्स द लार्ज पार्ट द इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम, तो लार्ज पार्ट है उसे रेक्टम कहा जाता है। और सी का और ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लीवर ग्लैंड होती है डॉगफिश मैसिव होती है लीवर ग्लैंड, जो कि बाइलेबेड होती है। यहाँ पर पूछ सकता है लीवर जो है कितने कैसा होता है, बाइलेबेड होता है। जी यहाँ पर स्पाइरल बाल हैं, ये लॉन्गिट्यूडल, इनकी बात तो अभी हो रही थी। हाफ टन है ये हाफ टन है। लॉन्गिट्यूडल मतलब लंबाई में, इस तरह से। स्पाइरल बाल इसे कहते हैं स्क्रॉल बाल। इस इंटेस्टाइन है यहाँ पर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, पाइलोरी ग्लैंड ऑफ स्टोमच, वेंट्रल लोब ऑफ पैनक्रियाज है यहाँ पर ये। तो ए यहाँ पर ए बी शेप्ड होता है, थिन वॉल्ड गॉल ब्लैडर होता है और लीवर बाइलेबेड होता है यहाँ पर। लीवर और सभी की तरह होता है, स्टोरेज करता है यहाँ पर बाइल और ग्लाइकोजन एंड फैट स्टोरेज करता है लीवर एंड एरिथ्रोसाइट ऑफ ब्लड बॉन्ड करता है। पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज और सीधी सिंपल होती है यहाँ पर। और सीकल ग्लैंड यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। स्प्लीन ये भी महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। फूड एंड फिजियोलॉजी, हाँ ये महत्वपूर्ण है। फूड एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसका है जो प्रेडिटर है कन्वी वेयर हाउस है, मांसाहारी है। फीडिंग माइनली द अदर फिशेस, छोटी फिश पर डाइट द में आल्सो इंक्लूडिंग क्रेब्स लोबस्टर बॉम्स, यानी मांसाहारी है। कर्निवोरस इट इज फूड इज स्लॉड विदाउट द मास्टिकेशन, क्योंकि फूड जो है लीला जाता है, क्योंकि जबड़ा नहीं पाया जाता है चबाने के लिए। नो डाइजेशन अकर इन द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में डाइजेशन नहीं होता क्योंकि इसमें सिलेबरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। गैस्ट्रिक जूस स्टोमच कंटेन द पेप्सिन, जो गैस्ट्रिक जूस है यहाँ पर इसमें पाया जाता है पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक HCl, जिसकी बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस है वो पेप्सिन होता है और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक मतलब एसिड। इट इज द कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द साइटोनिन प्रोटीओज एंड प्रोटेन्स बट कैन नॉट डाइजेटेड काइटिन, काइटिन को डाइजेट नहीं करता है। प्रोटीन को प्रोटीएज में तोड़ता है और पेप्टोन में तोड़ता है, मगर काइटिन को डाइजेट नहीं करता। वाइल द मैक द सेमी डाइजेटेड फूड अल्कलाइन इंटेस्टाइन वाइल द पेनक्रिएज टैक्सिनोजन, सेमी अल्कलाइन इंटेस्टाइन में हो जाता है फूड। पेनक्रियाज सेक्रेट द ट्रिप्सिनोजन, पेनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन सेक्रेट होता है एंजाइम। माइलेज एंड द लाइपेज,
पैनक्रियाज से क्या क्या होता है सिक्रिएट ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन के डाइजेशन की, स्टाइलोज अमाइलोप्सिन से, और फैट जो है लाइपेज के द्वारा फैट पाचन होती है। स्कोल वाइब इंटेस्टाइन और सर्व टू रिटार्ड द पैसेज ऑफ फूड। वही चीज़ यहाँ पर दूसरे शब्दों में बोल दी कि जो डिले करता है और इंक्रीज करता है एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन। वही बात घुमाकर यहाँ पर इसकी बात कर दी है स्कोल वाइब की कि जो रिटार्ड यानी डिले करता है पैसेज फूड ऑफ वाट द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर द ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड प्रोडक्ट डाइजेशन और प्रोड्यूस करता है डाइजेशन। रेस्पायरेशन की बात करें यहाँ पर रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेशन डॉग फिश द aquatic एनिमल डिपेंड अपॉन द होली अपॉन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है जो कि वाटर में घुली पाई जाती है। कैरी आउट इंटायर वैस्कुलर गिल्स जो कि गिल्स के द्वारा एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का। डॉग फिश सिंस aquatic एनिमल डिपेंड अपॉन द, यहाँ पर वही चीज़ है दोहराई गई, वही चीज़ दोहराई गई यहाँ पर। यह गिल्स हैं जिससे ऑक्सीजन जो है इनटेक कर ली जाती है वाटर में। ये स्कालियोडन, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कालियोडन गिल पाउच। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर 5 पेयर गिल पाउच होते हैं, 5 पेयर गिल पाउच होते हैं, गिल पाउच 5 पेयर, 5P GP 5 पेयर GP गिल पाउच। ब्रांकियल अपर्चस, एक्सटर्नल ब्रांकियल अपर्चस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनल ब्रांकियल और तक सेप्टम, विसरल आर्च गिल, ब्रांकियल रेयर्स गिल और या फिर विसरल आर्च। और यहाँ पर इसके गिल जो है वो किस तरह के होते हैं, डेमी ब्रांच या फिर हेमी ब्रांच। डेमी ब्रांच या हेमी ब्रांच, स्कालियोडन गिल है डेमी ब्रांच या हेमी ब्रांच। और जो होलो ब्रांच गिल होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट गिल काल्दा, जो पूरे यहाँ पर कम गिल होते हैं उसे होलो ब्रांच कहते हैं। आधे होते हैं आधे ब्रांच में, आधे वैसे होते हैं तो उसे हेमी ब्रांच या फिर हो डेमी ब्रांच कहते हैं। जो पूरे होते हैं गिल्स, गिल सेप्टम, इट्स गिल सेप्टम कंस्टिट्यूट कंप्लीट गिल, पूरे गिल होते हैं उसे होलो ब्रांच गिल कहते हैं। द लेमली देन दोज एंटीयर डेमी ब्रांच, लेमली होती डेमी ब्रांच एंड गिल पाउच कंटेन 2 डेमी ब्रांच, गिल पाउच में 2 और डेमी ब्रांच पाई जाती हैं बिलोंगिंग टू एडजेसेंट गिल। इन स्कालियोडन द होलोइड arch bears only the demi branch on its posterior rays. First 4 branchial arches appear hollow branch. First 4 branchial arches bear hollow branch while the 5th branchial arch is a, तो फर्स्ट 4 जो ब्रांकियल आर्च होती हैं उसे होलो ब्रांच कहते हैं क्योंकि वो समान होती हैं। जो फर्स्ट 4 ब्रांच होती हैं, फर्स्ट फोर जो होती हैं ब्रांचेस वो यहाँ पर होलो ब्रांच होती हैं। बाकी फिफ्थ ब्रांकियल इलाज वो ब्रांच होती है वो तो ब्रांकियल होती हैं। बाकी फिफ्थ ब्रांचियल होती है विदाउट एनी गिल होती हैं स्कालियोडन में। यहाँ पर डायग्राम है सब जो गिल लेमली का। फिफ्थ होती हैं उनमें कई, जो फिफ्थ ब्रांच होती हैं गिल की वो उनमें कोई ब्रांच नहीं होती है विदाउट एनी गिल। फिफ्थ जो गिल होती है ब्रांच उसमें कोई गिल नहीं होती है, जबकि 1 से 4 तक होती है वो होलो ब्रांच। यहाँ पर पूरे गिल की ब्रांच पाई जाती है और जो फिफ्थ है उसमें कोई गिल ब्रांच नहीं पाई जाती है। इन स्कालियोडन अदर इलेस्मो ब्रांच फेसेस internal branchial septa extend beyond the gill, namely from the flaps which protect the gill as well as external gill slit. Such gills are the called lamiform and the regarded more primitive than those of the bony fishes. In Scaliodon, in front of the thyroid arch for the
फर्स्ट एक्सटर्नल गिल slit on the other side of the appendix present oval or the spical. It had the no gill lemibranch and lemibranch no external opening and it is regarded vestigial gill pouch. तो इन थिकालियोडन में जो हाइड्रॉइड आर्च होती है, फर्स्ट इंटरनल गिल स्लिट होती है और इनर अदर साइड ऑफ द पेनिक्स प्रेजेंट द ओवल पिट ऑफ स्पाइकल, जो कि ओवल पिट पर स्पाइकल पाए जाते हैं. इट हैज़ द नो गिल लेमली एंड नो एक्सटर्नल ओपनिंग. इसमें यहाँ पर जो अदर लेटरल साइड होती है पेनिक्स की वो प्रेजेंट होती है ओवल पिट या फिर स्काइफल. जो लेटर साइड होती है पेनिक्स की उसमें स्पाइकल पाए जाते हैं. स्पाइकल में तो दो इधर साइड पर पाए जाते हैं, दोनों साइड पर. लेटरल और जो पेनिक्स होती है उसमें यहाँ पर ओवल पिट पाई जाती है स्पाइकल. इट हैज़ द नो गिल लेमली. इसमें गिल लेमली नहीं पाई जाती है एंड नो एक्सटर्नल ओपनिंग, और यहाँ पर ना तो एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है. रिगार्डेड वेस्टिजियल गिल पाउच. इसमें यहाँ पर नो गिल लेमली एंड नो एक्सटर्नल ओपनिंग. इसमें नो गिल, ना तो गिल लेमली पाई जाती है, नो तो एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है. एंड रिगार्डेड द वेस्टिजियल गिल पाउच, और जो यहाँ पर वेस्टिजियल गिल पाउच की तरह होती है. क्या होती है यहाँ पर स्काइडन में फ्रंट हाइड्रॉइड आर्च, इंटरनल गिल स्लिट, इंटरनल गिल स्लिट होती है. जो यहाँ पर जो गिल लेमली एंड नो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसमें, इसे रिगार्ड वेस्टिजियल गिल पाउच बोला जाता है. स्काइडन में हाइड्रॉइड आर्च होती है, जो कि इसे हाइड्रॉइड आर्च को क्या बोला जाता है, जो वेस्टिजियल गिल पाउच माना जाता है हाइड्रॉइड ब्रांच को, हाइड्रॉइड आर्च या फिर फर्स्ट इंटरनल गिल स्लिट. मोस्ट अदर इलिसमो ब्रांच फिशेज कंटेन द माइनर गिल लेमली ओपन. कुछ अदर हैं जो माइनर गिल लेमली पाई जाती है, इसे स्यूडो ब्रांच कहते हैं. मैकेनिकल रेस्पायरेशन और ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन वाटर टेक इनटू द माउथ. तो यहाँ पर ये मैकेनिकल होगा, माउथ से जाता है इंटरनल गिल स्लिट. इंटरनल ब्रीथिंग गिल धोते हैं और गिल धोते हुए लेमली पास आउट द एक्सटर्नल गिल स्लिट. लेमली से फिर एक्सटर्नल गिल स्लिट में आता है. फिर ब्रीथिंग मूवमेंट अकर इन द टू स्टेप, जिसमें ब्रीथिंग मूवमेंट टू स्टेप होती है. पहली पेनिक्स वर्किंग ए शॉर्ट फोर्स पंप्ड. पेनिक्स है यहाँ पर शॉर्ट पंप की तरह वर्क करती है. इन रेस्पायरेशन सीरीज ऑफ द होलो ब्रांच मसल्स. तो इन रेस्पायरेशन क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा होता है, तो होलो ब्रांचियल मसल के द्वारा होता है इंस्पायरेशन. और यहाँ पर ज़्यादा वो होता नहीं. एक्सपायरेशन नेक्स्ट माउथ इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ एडक्टर मसल. तो एक्सपायरेशन किसके द्वारा होता है, एडक्टर मसल के द्वारा. और इंस्पायरेशन होता है गिल स्लिट के द्वारा पेनिक्स की. एक्सपायरेशन किसके द्वारा होता है, एडक्टर मसल के द्वारा. एट द सेम टाइम होता है यहाँ पर. जैसे कि इंस्पायरेशन होता है उसके बाद तुरंत उसी समय वो होता है इंस्पायरेशन. जो स्पाइकल पाए जाते हैं दोनों साइड पर लेटर, उसे उनका फंक्शन पूछ सकता है. तो स्पाइकल सर्वर्स यूज एसेसरी पैथवे फॉर द एंट्री ऑफ वाटर. तो वाटर की जो एंट्री है उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है. रेस्पायरेशन के लिए स्पाइकल पूछ सकता है. स्पाइकल व्हाट इज स्पाइकल इन स्काइडन. तो स्पाइकल इन स्काइडन जो क्या करते हैं, एसेसरी पैथवे फॉर द एंट्री ऑफ वाटर फॉर रेस्पायरेशन इंसिडर माउथ व्हेन इट इज ऑक्यूपेड अदरवाइज. तो यहाँ पर जो जलधारा है उससे रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं. एसेसरी पैथवे फॉर एंट्री ऑफ वाटर फॉर रेस्पायरेशन. फिजियोलॉजी रेस्पायरेशन इज गिल एज एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ द sinusoid which receive the venous blood from the afferent bronchial artery and pass it efferent bronchial artery. During the pass of blood through the network it become oxygenated. तो यहाँ पर फिजियोलॉजी रेस्पायरेशन में जो ब्रांकियल आर्टरी है उससे पास होकर जाता है, तब यहाँ पर
ब्रांकियल होती है यहाँ पर, उससे होकर जाता है ब्लड, तो यहाँ पर कैसा हो जाता है, तो वो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेट होता है यहाँ पर ईबी ब्रांच आर्टरी में होकर जाता है। एफरेंट ब्रांकियल आर्टरी में प्रवेश करता है, पास इनटू द अन एफरेंट या फिर एपी ब्रांकियल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से बनता है, एपी ब्रांकियल आर्टरी में प्रवेश करता है ड्यूरिंग द पास पैसेज ऑफ द ब्लड थ्रू दिस नेटवर्क। तो यहाँ पर एपी ब्रांकियल आर्टरी में प्रवेश करता है, तभी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी पाथ ऑन इट इफरेंट या फिर एपी ब्रांच आर्टरी ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द नेटवर्क इज बिकम द ऑक्सीजनेटेड। तो जो पैसेज होता है ब्लड नेटवर्क में जाती है यहाँ पर वाटर करंट एपी ब्रांकियल की आर्टरी में, तो उसमें यहाँ पर ब्लड की जो ब्रांच नेटवर्क है वो उसमें ऑक्सीजनेट हो जाती है। एफरेंट ब्रांकियल आर्टरी है वो पास डाउन हो जाती है एफरेंट द एपी ब्रांकियल आर्टरी में। वो एफरेंट ब्रांकियल जो आर्टरी है वो गुजरती है कहाँ से, एफरेंट या फिर एपी ब्रांकियल आर्टरी में, तभी यहाँ पर उसके ब्लड नेटवर्क जो है ऑक्सीजनेट हो जाती है। फ्रेश वाटर इंटर करता है यहाँ पर गिल नैमली में, एंट्री करता है गिल पाउच में, जैसे ऑक्सीजन जो घुली हुई इसमें पाई जाती है, और जिससे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन द्वारा चली जाती है मेम्ब्रेन में, परमीबल कैपिलरी के द्वारा ब्लड में चली जाती है, और जो इसी टाइम ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज मेथड के द्वारा बाहर निकल जाती है आउट गोइंग वाटर में। दिस प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। आज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड circulate through the body, O2 is used tissue and oxidized food stove और CO2 formed, और CO2 जिससे बनती है ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज होता है फूड का तभी। और यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर कई चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि 4 पार्ट हैं। हार्ट पाया जाता है, हार्ट, पेरिकार्डियम, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड। तो आर्टरीज, वेन्स और हार्ट, पेरिकार्डियम ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। तो यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट एंड पेरिकार्डियम पाया जाता है। हार्ट जो है वेनाउस या फिर ब्रांकियल हार्ट होता है, तो क्योंकि पंप करता है साइक्लोस्टोम एंड अदर फिशेस, हार्ट इज स्काइजन रिसीव वेनाउस ब्लड ओनली इन इट द पंप इनटू द गिल एरिएशन। तो जो स्काइजन है वेनाउस ब्लड प्राप्त करता है, जो कि एरिएट होता है यानी ऑक्सीजनेट होता है। तो इसे इस तरह के वेनाउस या ब्रांकियल हार्ट कहते हैं इसे, क्योंकि इसका हार्ट है जो वेनाउस ब्लड प्राप्त करता है, इसीलिए वेनाउस हार्ट कहते हैं इसे। वैसे इसमें आर्टरीज पाई जाती है, वेन्स पाई जाती है, हार्ट पाया जाता है, पेरिकार्डियम पाया जाता है। और इसकी हार्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर मामल्स है, इसका यहाँ पर 3 चेम्बर्ड होता है, 2 चेम्बर्ड है यहाँ पर फिशेज का हार्ट, आरिकल, वेंट्रिकल। जो मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे हैं। तो यहाँ पर जो चेम्बर्ड की बात करें तो 4 चेम्बर्ड है यहाँ पर, वैसे 2 चेम्बर्ड है, मगर 4 चेम्बर्ड बटा है थोड़ी, तो सीरीज में एस शेप्ड होता है, और यहाँ पर 4 सीरीज में होता है। सीरीज में होगा चेम्बर, तो सीरीज ऑफ 4 चेम्बर, मगर चेम्बर 2 ही पाए जाते हैं। सीरीज होती है 4 चेम्बर्ड की, सीनस वेन, आरिकल, वेंट्रिकल, कॉसस, कॉर्टिकस। यहाँ पर 4 सीरीज होती है चेम्बर की, मगर रियल चेम्बर 2 ही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट ओनली 2 चेम्बर इन फिशेस। यहाँ पर ये चीज़ देखो, यहाँ पर क्योंकि जो फिशेस हैं यानी फिशेस यानी फिशीज क्लास है, और यहाँ पर 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें सीरीज होती है 4 चेम्बर्ड की, जिसमें आर्टिकल, सीनस, वेनस, आर्टिकल, वेंट्रिकल एंड कॉन्सस आर्टरी सोर्स पाया जाता है। सीनस, वेनस, कॉर्सस डक्टस को बेरीज में पाया जाता है। सेमी आर्टिकल पाया जाता है, आर्टिकल के बाद वेंट्रिकल पाया जाएगा, वेंट्रिकल
आर्टिकल वेंट्रिकल और जो उसके बाद कासस आर्टिकल्स 4 चेम्बर होती है सीरीज की। इसमें वर्किंग जो है वेनाउस एंड आरिकल्स कंस्टिट्यूट रिसीव चेम्बर फॉर द हार्ट वेयर ऑफ द वेंट्रिकल एंड कार्टिकल्स कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट। तो वर्किंग जो है वीनस एंड सीनस वेनाउस एंड आर्टिकल कंस्टिट्यूट रिसीव ब्लड चेम्बर्स। जो सीनस और सीनस वेनाउस एंड आरिकल्स जो हैं दोनों चेम्बर यहीं पर ब्लड प्राप्त करते हैं, यानी डायसिस्टोल होता है तभी। सिस्टोल होता है, डायसिस्टोल के बाद यहाँ पर ब्लड खाली हो जाता है, तो यहाँ रिसीवर होते हैं दोनों वेंट्रिकल कस्क और सीनस वेनस एंड आर्टिकल्स। जबकि यहाँ पर वेंट्रिकल एंड कासिकल कार्टिकल जो हैं फॉरवर्ड करते हैं यानी डायसिस्टोल करते हैं। हार्ट ऑफ द स्कालिडन जो पूछ सकता है जो है ब्लड कौन रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सीनस वेनस एंड आरिकल्स। और ब्लड जो है पंप करता है कौन, वेंट्रिकल एंड कासस आर्टिकल्स। पंप कौन करता है ब्लड, पंप करता है वेंट्रिकल एंड कासस आर्टिकल। और रिसीव कौन करता है, सीनस वेनस आर्टिकल। यहाँ पर दोनों मिलकर बनाते हैं हार्ट बीट। द हार्ट ऑफ द स्काइडर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो फिशेस का जो हार्ट होता है वो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है या फिर वेनाउस ब्लड, क्योंकि वेनाउस ब्लड जो डीऑक्सीजनेट होता है जो आर्टेरियस ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेट होता है, जबकि वेनाउस ब्लड है इसीलिए वेनाउस हार्ट से बोला जाता है फिशेस का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। इन कंप्लीट सर्क्यूट बॉडी पास ब्लड हार्ट ओनली वंस सर्कल। पूरे यहाँ पर एक कंप्लीट सर्किट में एक पूरे साइकिल में ब्लड जो है पास होता है हार्ट ओनली वंस टाइम। एक सर्किट में एक बार ब्लड प्राप्त होता है हार्ट को। हार्ट वर्क लाइक द मस्कुलर पंप। हार्ट है वो मस्कुलर पंप की तरह कार्य करता है। पंपिंग इट वेनाउस ब्लड गिल्स एरिएटेड। जो पंपिंग ब्लड होता है वेनाउस है वो यहाँ पर ऑक्सीजनेट होता है गिल में। टू अचीव हिल्स दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट रिथमिकली कंटेक्ट। और जो यहाँ पर रिथमिक कंटेल होता है जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है। फर्स्ट सीनाउस वेनाउस, पहले सीनाउस वेनाउस होता है, फिर उसके बाद आर्टिकल एंड वेंट्रिकल सीनस कंडक्शन होता है। पहले सीनाउस और वेनाउस होता है, फिर आर्टिकल होता है, जो कि यहाँ पर सीनाउस वेनाउस दोनों ब्लड रिसीव पहले सीनस वेनस में ब्लड आता है, फिर आर्टिकल में जाता है, इसके बाद फिर वेंट्रिकल फाइनली होता है और द कार्डिकस आर्टिकल। इसके बाद यहाँ वेंट्रिकल और कार्डिकस आर्टिसोस होता है। ईच कंडक्शन कॉल्ड द डायसिस्टोल। प्रत्येक कंडक्शन को डायसिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, और रिलैक्सेशन को डायसिस्टोल, जैसे एनिमल में होता है ह्यूमन बीइंग में उसी तरह से इसमें भी होता है। वेव पास होती है हार्ट सर प्रिवेंट ब्लैक बॉड। हार्ट है वो यहाँ पर पीछे के ब्लड प्रिवेंट करता है जाने से। फिलाउ द ब्लड इनटू द प्रोसीडिंग चेम्बर थ्रू द अपर्चर्स गाइड द बॉल ऑफ द हार्ट सप्लाई द ऑक्सीजन ब्लड थ्रू द स्पेशली कॉर्नरी आर्टरीज। एरियल सिस्टम, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं है एरियल सिस्टम। और ओटा एंड डिफरेंट ब्रांकियल और ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। वीडियो पॉज करके देख लें अगर आपको कुछ ख़ास चीज़ें इसमें लग रही हो। फिलहाल जो ख़ास चीज़ें हैं वही हम पढ़ेंगे। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो केवल साइक्लोस्टोम में वर्टिब्रेट वेगिनी विद द साइक्लोस्टोम में सबसे पहले पाया गया था हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल वेन में होता है हिपेटिक सिंस लेटरल एब्डोमिनल सिस्टम, लेटरल वेन्स, कमीसोल वेन्स। ब्लड स्कालिडन कंसिस्ट ऑफ द कलरलेस प्लाज्मा एंड कलरलेस सस्पेंडेड इन द कलरलेस ऑफ द टू टाइप आरबीसी। तो यहाँ पर कलरलेस होता है यानी आरबीसी और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट
टू टाइप की आरबीसी होती हैं यहाँ पर, ओवल एंड न्यूक्लिएट होती हैं। ओवल एंड न्यूक्लिएट जो कि कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ओवल न्यूक्लिएट होती हैं वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, जबकि डब्ल्यू होती हैं ल्यूकोसाइड आधा अमीबाइड होती हैं। तो टू टाइप की सेल होती हैं यहाँ पर, एक ओवल न्यूक्लिएट होती हैं जैसे स्काईडॉन में ओवल न्यूक्लिएट होती हैं, और बॉडी कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, आरबीसी ल्यूकोसाइड अमीबाइड एंड रिसेंबलिंग ल्यूकोसाइड, लिम्फोसाइड की तरह यहाँ पर होती हैं डब्ल्यूबीसी अमीबाइड सेल्स। न्यूरल सिस्टम यहाँ पर पेरिफेरल सेंट्रल होता है, एटोनॉमिक होता है। तो यहाँ पर वीडियो यहीं तक पॉज करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।